Voting is underway in 13 constituencies of Mirpur division in the first phase of elections in Azad, Jammu and Kashmir. Polling began at 8 am on Monday and will continue until 5 pm. The day has been declared a public holiday across Bhimber, Mirpur and Kotli districts to facilitate voting. A total of 288 candidates are contesting the first phase, with more than 1.4 million people registered to vote. According to the Election Commission, 2,316 polling stations have been established across the division. More than half, or 1,241 polling stations, have been declared highly sensitive. Another 724 have been categorized as sensitive. Authorities have deployed 18,560 police and other law enforcement personnel under a 3-tier security plan. Police form the first layer. Rangers and the Federal Constabulary make up the second, while the Pakistan Army provides the third. Around 2,100 Army personnel have been deployed, with quick response force teams on standby. The elections are being held in 3 phases because of security concerns. The second phase is scheduled for August 2nd and will cover 9 constituencies in Muzaffarabad division and all 12 constituencies reserved for Kashmiri refugees living in Pakistan. The third phase will be held on August 10th across 11 constituencies in Poonch division. AJK Chief Election Commissioner Ghulam Mustafa Mughal has urged voters to participate in large numbers. He said security would be provided both at polling stations and along the routes used by voters. The Election Commissioner and AJK's Chief Secretary have warned that anyone attempting to disrupt voting or public order will face legal action. The warnings followed a call by the prescribed Joint Awami Action Committee for a march from Mirpur division towards Muzaffarabad. However, police said on Sunday evening that no one had gathered to join the proposed rally. Politically, the election is being closely watched as a contest between the Pakistan People's Party and the Pakistan Muslim League Nawaz. PPP chairman Bilawal Bhutto Zardari and former Prime Minister Nawaz Sharif both campaigned extensively ahead of the vote. Nawaz criticized the PPP's record in Sindh and presented the PMLN as a party of development in AJK. आज बड़े सालों के बाद आके मैं देख रहा हूं कि मेरे मीरपुर का क्या हाल है। मीरपुर इतना खूबसूरत शहर है कि जिसको कि आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो अपने दौर के जो मेरे काम हैं वो अधूरे के अधूरे पड़े हैं और परवान नहीं चढ़ सके। लेकिन आज मैं भी आया हूं, हमारी मुस्लिम लीग की लीडरशिप भी यहाँ पे मौजूद है। कश्मीर को तो मैं अपना घर समझता हूं। कश्मीर मेरा दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है। और लाहौर नहीं बल्कि लाहौर भी है, उतने मुझे प्यारा कश्मीर भी है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। वो अपने फैसला खुद करना चाहते हैं। अपने मुस्तकबिल के इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे, ना किसी दूसरे सूबे को। मियाँ साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। 27 जुलाई को कश्मीर की तरह कश्मीर का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में होगा। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का अवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। मियाँ साहब बुरा ना माने, मीरपुर का फैसला तय है। मीरपुर के अवाम तीर पर मोड़ लगाएंगे, हक हकमियत के लिए, हक मिल्कियत के लिए, हक रोजगार के लिए। His party also provided electric buses to Muzaffarabad and Mirpur and announced new development projects. The PPP accused the PMLN of violating the election code by announcing schemes close to polling. हमारी अव्वलीन तरजीह इन नौजवानों को तालीम देना होगी। तालीम, यहाँ स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बनेंगी। बोलो इंशाल्लाह। और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मरियम बना रही है ना पंजाब में, दिल के अमराज के अस्पताल, कैंसर के अस्पताल, हर अस्पताल में हर किस्म की मशीनरी मौजूद है।
मरियम, ये चीज़ मैं शहबाज शरीफ साहब से ये बात कहूँगा और मरियम से भी ये मैं कहता हूँ कि यहाँ के हर अस्पताल में वही कुछ होना चाहिए जो पंजाब में आप कर रही हैं। यहाँ पर भी कैंसर अस्पताल बनना चाहिए, यहाँ पर भी दिल के अमराज के बेशुमार अस्पताल बनना चाहिए और यहाँ पर भी हर अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई होनी चाहिए। ये लोग इलाज मुआवजे के लिए लाहौर या इस्लामाबाद ना जाएं, इनके इलाज मुआवजे की सहूलतें मीरपुर में होनी चाहिए, कोटली में होनी चाहिए, भिम्बर में होनी चाहिए, पूरे आजाद कश्मीर में होनी चाहिए। बोलो मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा? और फिर यहां पर मरियम भी आज आपके लिए तोहफा लेकर आई है। कहती कि मैं मीरपुर जा रही हूं। मीरपुर वैसे देखो कितना खूबसूरत नाम है, मीरपुर कितना खूबसूरत नाम है। और कहती मैं मीरपुर जा रही हूं, मैं मीरपुर के अवाम के लिए तोहफा लेके जाना चाहती हूं। अभी तोहफा खुद बताएंगी आपको क्या लेके आई हैं। ये मुझे कह रही है कि आप बताएं। ये यहाँ पर वही जदीद तरीन इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसें जो लाहौर में चल रही, वो आपके लिए भी लेके आई हैं। Bilawal said by saying that projects funded by taxpayers were not gifts from politicians but rights belonging to the public. He framed the election around what he called the people's rights to governance, ownership and employment. With voting now underway, the first results will offer an early indication of whether the PMLN's development campaign or the PPP's rights-based message has gained greater support among voters. आपको बसेस, हॉस्पिटल, रोड्स और एयरपोर्ट्स के वादे सुनाए जा रहे हैं। मैं हर बस, हर हॉस्पिटल, हर रोड और हर एयरपोर्ट का खैर मकदूम करता हूँ, लेकिन अवाम के पैसे से बनने वाली चीज़ किसी सियासतदान का तोहफा नहीं होता, अवाम का हक होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वादे नहीं किए, हमने एजेके के बजट में 3000 नई टीचर्स, चक्सवाड़ी में कार्डियक हॉस्पिटल, नई रोड्स, IT सेंटर्स और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके रखे हैं। मैंने खुद पिछले वफाकी बजट में मीरपुर एयरपोर्ट के लिए पैसा दिलवाया था। जिस स्टेडियम में हमारे मुखालिफिन तकरीर कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही बना। मैं कश्मीर के अवाम को हक में था कि मलकियत और हक रोजगार दिलवाना चाहता हूँ, वही हकूक जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। तब उन्हें इस किस्म की तोहफे की ज़रूरत नहीं होंगे, वो खुद अपनी तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। 27 जुलाई को बड़ी तादाद में बाहर निकल के तीर पर मोड़ लगाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएं। तरक्की भी, इख्तियार भी, रोजगार भी और कश्मीर का फैसला कश्मीर का।